I had been asked to introduce digital marketing as a subject with you. So I the topic of the digital marketing, how it is influencing life of each and everyone. Right. I would give a brief introduction about me. So I have done my PhD in management in year 2015, and I have been associated with a number of the management institutions, and I have done some FDPs from IITs and from ISBs. So I have got this specialization of the digital marketing. So wherein I had been asked to give certain insights like what is happening, why is it so useful. Though you people are already experiencing the importance of the digital marketing day in day out, right? But still, I would like to. I'm not here to tell you anything. It's actually going to be a kind of the learning session that I want, right? So probably like whatever I have experienced till now, whatever I have learned till now, I'll be sharing with you. And if you have got some ideas and certain insights, so you can share with me. So it is going to be like kind of the two-way interaction between all of us. So I would just share my screen before I go ahead with the topic. So, and I have my slide is visible. Give me a second, please. Because of this network problem, sometimes it will be problem. Okay. My slides are visible to everyone. Yeah, yes, sir. It's visible. Fine. So before I go ahead and we talk about the digital marketing, right? So I simply wanted to know from all of you, since we all are passing through tough times of this pandemic, have you any point of time experienced that digital is really playing an important role in our life? What is your thought? Yeah, it's for sure, sir. Yeah, it's going very important right now because of this COVID-19 also. COVID-19 has made such ambience, especially for digital marketing. Although it was very important before as well. Now it's going very importantly, very valuable. So yeah, Adhikari, that's correct. Like everybody is nowadays feeling the importance of the digital marketing. So here, nobody will say like the digital marketing is not very important. So say for example, if I would tell you like I have got certain products. I'm a entrepreneur and I want to sell certain products. Like say for example, I want to sell chargers. I want to sell some kids wears. So the point here is because of this peculiar situation of the COVID, or maybe probably because I may not be having flush amount of money so that I can purchase a big retail outlet in a big city like Mumbai, or maybe in a city like Delhi, or maybe a city like Kathmandu. So they were like, what shall I do? Because I have got that kind of the entrepreneur uh, skill set or mindset that I want to sell my product anyhow. So where should I sell it? So I just wanted to launch with you like one quiz. I'll be just sharing with you one quiz. I just want like you people should answer before I go ahead. I stop sharing screen here. So I'm just sharing one link with you all. Can you please click on this link and just can give me your opinion about it? Where shall I? The point remains the same. I want to actually sell my kids wear. I want to sell my uh, charger. Where shall I sell it? What do you think? Is it opening there at your end? Is the link opening?
Hello, am I audible? Yeah, it's asking password as well. Okay, 1 minute. Is it still asking password? Can you please check? Yeah, it's still asking password, sir. Okay, anyway, no issue. I think like so now the point here is, suppose I would like to ask you this point here. Shall I sell it through my website? Shall I sell it through Facebook? Shall I sell it through Instagram, Pinterest kind of the platforms? Shall I use drop shipping, or shall I sell it at my retail outlet? What do you say? Like, I want your opinion on this before I go ahead. What is your opinion? Like, where shall I sell this kind of the product now? What do you think? Shall I utilize the online channels? Shall I utilize the outlet, my own retail outlet? What is your opinion? Anybody? Hello? Yeah, here's your wish, sir. Here's your wish. Okay, as my wish, like, but there should be some or the other reasoning behind it. Like, if I am choosing a retail outlet, I need to spend huge amount of money while I'm purchasing a retail outlet. I need to keep stock in my hand, right? So inventory management has to be done. But probably, like, in case if I am wanting to sell it directly from my say online channels, will it be easy for me? Will it be helpful for me to reduce down my cost? So then probably I think if you say that if I'm going to choose the online channels, probably it is going to help me better than what I'm going to sell through offline mode, say from the retail outlets. So obviously, like nowadays, we have to understand that it's a kind of the omni channel. I'm not saying here that boss, you need to sell your product only from the online channels. So somehow, like I need to identify a strategy where I need to approach to my customers online as well as I need to reach to my customers offline. So thereby, like I need to find out either multi-channel strategy or I need to adopt a strategy in which I'll be reaching out my customer with both the ways. So it is going to be omni-channel strategy which I need to adopt. So now point here is why I need to adopt the omni-channel strategy, because my customer is sitting online, right? My customer is sitting online, so I have to be there where my customer is sitting. So as you can see on my screen, if we talk about the digital marketing, it is having a lot of the importance, right? Before I go to the importance, let me just find out like how we can define digital marketing. So people are giving different definitions. You people will also be the definition which are written in verbatim given by the various people from the various sources. But simply, if I would say that digital marketing is such kind of the strategy of the marketing where it is subsuming all the marketing efforts of all the different channels which are being utilized to promote a product through various modes like of various platforms like websites or blogs or emails or social media or forums or mobile applications, or maybe probably like these are the various modes. Apart from this, you can actually promote your product or the services through video, or probably you can promote your product through content marketing. So put together, all these are the various digital channels where I will be promoting my goods or the services. So then in that case, like with this definition, would you agree? Would you agree that will you say yes, that these are the various modes through which I can reach to my customers? So if you are saying yes, so that means these all things are the part of the digital marketing. So digital marketing does not mean here only promoting your product through website or promoting your goods through mobile applications or promoting your goods or services through blogs. So put together, it's going to be a web of various platforms which will be utilized, which will be used in such a manner that it will be actually fulfilling the objective of the organization, that is to sell and to create a good brand equity in the market.
So this is what is the broader definition of the digital marketing, where it says like it is subsuming almost all the marketing efforts, irrespective of the digital platform. So thereby, the digital platform, whichsoever it may be website or blog or email or social media or forum or the mobile applications or maybe the video or platforms like YouTube or Vimeo. But put together, wherever we are wanting to create the awareness about the brand and we want to sell our product, we are actually involved in digital marketing. So why we are actually doing this digital marketing? Because my customer is there, who is sitting digital on the digital platform. So digital marketing helps me to directly reach out to the customer. Number one, this is very important aspect, because otherwise earlier in the earlier days, what used to happen, like it was difficult for me to reach out to my customers directly. Another very important aspect of the digital marketing is it will be helpful for me to create a proper brand awareness, and I can target my customers in a far more better manner. Say for example, if I will give you the example of Facebook Manager or Ad Manager. So you have got their proper category, right? So you can have the proper target audience. You can define. You can do the profiling of your target audience. Same is the case in the Google Ads. So you can there also do the proper profiling of your target audience. You can can have the demographics. You can have the psychographics of the people. So thereby, like you know that to whom I am marketing my product, right? So this is what is very important for any kind of the format or any digital media. Like if you are able to identify who is my customer and I'm really reaching to that customer or not, that is also very important. So with the help of the digital marketing, you can ensure that you are reaching to the right consumer with the right content, right? So for example, earlier we were not having the facilities of the email marketing. So people were sending now here and there the mailers, the postal emails will be, the mails will be sent off, but we never knew whether really it is read by them or not read by them. But now if you have been sending emails to promote your brand, you have got metrics in your hand, you have got open rate metrics in your hand, that the customer has or the target audience person has read my mail. And at least you have got another idea, like now how shall I be further reaching to my target audience. So it is very easy nowadays to reach out to your target audience. But is it so easy also, like we are saying? Because it's not just me and my customer who are sitting online. It is my competitor also who is sitting online. Right? So thereby, put together, I have to do certain efforts whereby like I will be understanding all the components of the online marketing, the digital marketing properly, and at least some of them I'll be utilizing in a very efficient manner, and some of them I'll be utilizing in a fairer manner. So thereby, if I would say that digital marketing, there are various components of digital marketing, so it is not going to be wrong. So if I talk about, say, the components of the digital marketing, so search engine optimization, blog, banner ads, social marketing or social commerce, as well as social media marketing, forum marketing, email marketing, analytics, affiliate marketing, not only this, the video marketing, the content marketing. So put together, these are the various components of the digital marketing. So you cannot say now that, boss, I will only be doing SEO and I'll be successful. Or I'll be simply writing a blog, I'll be running a website, developing a website, and then making this website up, and then my product will be selling off. Or I'll be simply utilizing Google Ads, where I'll be advertising my products or the services through banner ads or maybe through display ads, and thereby my task will be done. Or I'll be utilizing simply Facebook or Pinterest or Instagram or Twitter or LinkedIn. So thereby, like, people are sitting there and they'll be purchasing my product. So, or I will simply create one community, and on that community I will start selling my product, or I'll send some emails and people will purchase my product. Or if I have got simply analytics, and then I know what the people are doing, and accordingly I'll be able to market my product easily, because I have got the power of analytics. Or if I'll be utilizing the platforms like Amazon, or maybe the platforms which will be providing the facility of the affiliate marketing, so thereby I will be able to sell my product. So thereby you cannot simply focus on only one aspect. These are all the components which are to go hand in hand.
So your strategy must be something which will be providing a holistic approach for the digital or the online marketing. So we are Excuse me, Prashant sir. Excuse me. Can I disturb you? yeah. Yeah. If you will mix Hindi also, people are very comfortable here in Hindi as well. Okay. Yeah. Yeah. Please, sir. Yeah. So then you want me to get into Hindi or shall I continue in English? Yeah, both mixed type of. अच्छा, ठीक है। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ यार वो है कि अगर एक मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाऊं किसी भी मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की, तो उस केस में मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं सारी चीजों का ध्यान रखूं। उसमें मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी देखूं, उसमें मैं ब्लॉगिंग भी देखूं, उसमें मैं बैनर एड्स भी क्रिएट करूं, सोशल नेटवर्किंग जो है उसका भी यूटिलाइजेशन करूं, साथ साथ में मैं कम्युनिटी भी बनाऊं, उसको डील भी करूं, उसको मैनेज भी करूं, मैं ईमेल्स भी क्रिएट करूं, मैं एनालिटिक्स का यूज भी करूं, मैं एफिलिएट मार्केटिंग का यूज भी करूं, साथ में आई हैव टू यूटिलाइज वीडियो मार्केटिंग आल्सो। सो पुट टुगेदर मतलब मेरा कहने का यहाँ ये है, जो हम लोगों को सबको पता है कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से मेरा काम नहीं चलने वाला। So I have to have the support of all these platforms. So how we are going to utilize these platforms? Because ये तो बहुत इजी है पढ़ लेना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि साहब ऑन साइट है ऑफ साइट है, बट हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट इज इम्पोर्टेंट। ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, वर्डप्रेस पे जाएंगे आप, जाके आप बिबली पे चले जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट अप कर देंगे, बट फ्रॉम वेयर यू आर ब्रिंगिंग योर कस्टमर, कस्टमर आना चाहिए उस वेबसाइट पे, ही शुड क्लिक योर वेबसाइट, तो CTR क्लिक टू रीड भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट तो आपने अप कर दी लेकिन आपके पास में कस्टमर वंस ही इज कमिंग ही इज जस्ट स्टेइंग ऑन योर वेबसाइट फॉर सेकंड एंड द बाउंस इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई, दैट शुड नॉट हैपन। तो करना क्या है हमको, ये सारी चीजें इस पूरे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है इसमें वी ट्राई टू टॉक अबाउट। तो जो भी मैं आई कम टू दीज पॉइंट्स अगेन, बट अगर people those who are really holding up their skills in the digital, so they have got various lucrative offers in the market. वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का रोल भी मिल सकता है, तो देयर आर वेरियस पोजीशंस व्हिच आर नाउ लाइंग वेकेंट। अगर आप अब जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करें तो पीपल आर रिक्वायरिंग द पीपल विद द राइट स्किल सेट। देयर इज नो डर्थ ऑफ जॉब्स की डर्थ नहीं है, बट द पीपल डोंट हैव राइट स्किल सेट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर उनकी पोजीशंस में जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स की पोजीशन भी खाली है, एसईओ मैनेजर व्हिच विल बी ओनली एंड ओनली डीलिंग विद एसईओ, बिकॉज़ पीपल विल थिंक एसईओ ओके ऑफ साइट है ऑन साइट है ठीक है, दो कर दिया बहुत हो गया, बट एसईओ को मैनेज कैसे करना है, हाउ यू आर रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट, लाइक इफ यू विल बी सपोज आई विल से टू यू से you just write on your browser mouthwash. So then can you please just browse through this website, can you write on your Google search page or Google search mouthwash, what comes at the first and foremost possible rank of the website, what comes first? पहला जो आपको सामने सर्च दिखता है वो क्या दिखता है? I think probably it will be coming something like this. Is it visible? Yes sir. तो देन आपके सामने ये आ गया अब कि उसमें एड्स दिखाया जा रहा है, उसमें अमेजोन दिखाया जा रहा है। अब मेरी तो जो छोटी सी कंपनी है, अब मैं कैसे लेकर आऊं, कैसे बीट करूं मैं अमेजोन को? तो उसके लिए आई विल हैव टू हैव द स्ट्रेटजी, बिकॉज आई कैन नॉट सिंपली यूटिलाइज द बेसिक स्ट्रेटजीज विच पीपल आर टॉकिंग अबाउट एसईओ की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और मैं ऑनलाइन अपनी जो है टाइटल अच्छा रखूंगा, हेडिंग अच्छा रख दूंगा, थोड़ा बहुत कंटेंट अच्छा रख दूंगा, अच्छी सी पिक्चर लगा दूंगा उसके ऊपर, एंड देन माय वेबसाइट विल बी अप एंड देन आई विल बी फाइंडिंग द कस्टमर कमिंग टू माय वेबसाइट परचेजिंग माय प्रोडक्ट। इट्स नॉट सो इजी आल्सो। सो ये कहना बहुत आसान है कि बॉस पोजीशंस आपके पास में बहुत है, सैलरी जो एवरेज सैलरी आज की डेट में मार्केट में चल रही है वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की 4 लाख से 10 लाख तक की है, जो कि एक्सपीरियंस के बेस पे है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर जो है उसकी सैलरियां 3 से 7 लाख की हैं। PPC या पेपर क्लिक या SEM सर्च इंजन मार्केटिंग जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सैलरियां 5 लाख तक हैं, जिसमें कि हम गूगल पे कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है इसके बारे में जानते हैं। वेब डेवलपर या डिजाइनर है, उसकी सैलरी 3 से 6 लाख तक है। वेबली पे कर दो, आप चाहो द्रुपाल पे कर दो, आप चाहो तो इजी आज की डेट में आप चाहो तो
HTML use कर लो, you want to utilize WordPress, so you can have the proper web development done and you can create the website. Social media manager आप बनना चाहते हो, then again if you are really having these skills, if you have already honed up your skills, 3.5 लाख से 7 लाख का पैकेज आसानी से मिल रहा है लोगों को. कंटेंट राइटर, दे आर ऑल्सो वेरी मच इन डिमांड. आप ये सारे काम जो है फ्री एज अ फ्रीलांसर भी कर सकते हो. सो पुट टुगेदर दीज सारी पोजीशंस आर वेरी मच अवेलेबल इन द मार्केट. बट पॉइंट हियर कि क्या करना है, पॉइंट हियर इज मेरे को अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करना है तो करना क्या है उसमें. So I would not get into a lot of the detail, but I try to simply talk about these all aspects, these all components. You cannot simply say कि मैं तो साहब जो PPC manager हूँ, but I will not look into the content like forum or what is happening for my brand on the forum. I will not be interested in knowing about what is happening on the social media network for my brand. What is happening if my brand manager is sending emails. अगर एनालिटिक्स आ रहा है तो मेरे को तो एनालिटिक्स आता ही नहीं है. ये तो काम जो है एनालिटिक्स मैनेजर का है, सो देन ही विल डू इट. नहीं बॉस, आपको सब कुछ करना पड़ेगा. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं क्या और काम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसईओ से. तो एसईओ नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग सर्च, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो सर्च इंजन है क्या? Before I got into this particular terminology, search engine optimization, it is very important to understand what is search engine. तो मैं आपको इन स्लाइड्स के माध्यम से थोड़ा सा समझाऊंगा या बताना चाह रहा हूँ. समझाना तो क्या, because you people are also learners people. I just want to tell you कि सर्च इंजन है क्या और काम कैसे करता है. तो सर्च इंजन बेसिकली एक ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू एक यूजर जो है वो अपनी क्वेरी डालता है किसी भी सर्च इंजन पे, और उसके बेसिस पर ये सर्च इंजन जो उसके पास पहले से डेटाबेस मौजूद है वहां से सारी इंफॉर्मेशन निकालता है और उसको मैच करता है कस्टमर और यूजर की सर्च क्वेरी से और उसको दे देता है कस्टमर को उसके सामने. तो बेसिकली हुआ क्या कि सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन है मार्केट में. गूगल इज वन ऑफ दी सर्च इंजन. यू टेक एग्जाम्पल ऑफ अनदर सर्च इंजन जिसको डक डक गो नाम सुना होगा आप लोगों ने. ठीक है, आप कोई ऐसा सर्च इंजन बता सकते हैं जो चाइनीज पीपल आर यूजिंग? चाइनीज पीपल बहुत ज्यादा, बिकॉज चाइना हैज ऑलरेडी ग्रोन लाइक एनीथिंग. चाइना जो सर्च इंजन यूज करता है, बिकॉज गूगल को वो वहां अपने यहाँ उतनी तरजीह, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते. तो चाइना का अपना खुद का सर्च इंजन है. क्या आप नाम बता सकते हैं? एनीबडी? चाइना का जो सर्च इंजन है उसको बाइडू बोलते हैं. रशिया का अपना सर्च इंजन है जिसको हम यांडेक्स बोलते हैं. इसी तरह से एक छोटा सा देश जिसका नाम है साउथ कोरिया, हिंदुस्तान के मुकाबले में अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो बहुत छोटा सा अपना उसका क्षेत्रफल है, एरिया बहुत छोटा है, बट दे हैव गॉट देयर ओन सर्च इंजन. फ्रांस की आर्मी जो है वो पूरा पूरा अपना सर्च इंजन, वो चाहते ही नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आए दिन ये हम सुनने में आता है कि गूगल जो है उसके पास में हमने डेटा दे दिया और वो डेटा जो है लीक हो गया. उन्होंने अपना खुद का सर्च इंजन फॉर आर्मी एंड दी डिफेंस पर्पस, दे हैव गॉट देयर सर्च इंजन. अगर आप आर्मी से कुछ भी चीज डील करना चाहते हैं तो वहां उनका सर्च इंजन आपको यूज करना पड़ेगा. अगर आप किसी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज जानना चाहते हो तो एक तो हमारा गूगल देता है ही, बट इसके अलावा इफ वी वांट टू नो इन डिटेल, इफ वी वांट टू गो extraordinary details about mathematical or physical information about the objects, देन वॉल्फ्रम करके एक सर्च इंजन है. तो ये सर्च इंजन है क्या भला, ये समझना जरूरी है. तो सर्च इंजन बेसिकली ये सारे एल्गोरिथम्स हैं, एक ऑनलाइन टूल्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने अपने सर्वर पे बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है. और ये डेटाबेस बनता कैसे है? बेसिकली ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो 3 स्टेजेस में काम करते हैं. पहला काम जो होता है वो कहलाता है क्रॉलिंग. सो क्रॉलिंग में क्या है, ये सर्च इंजन का जो एक एल्गोरिथम है वो हमारे इंटरनेट के थ्रू हमारी वेबसाइट से कांटेक्ट करता है. हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसको, फॉर एग्जांपल मैं गूगल का एग्जांपल देता हूं, तो देयर इज वन प्रोसेस कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन ऑन गूगल. तो गूगल पे जाके गूगल के सर्च कंसोल पे, दैट इज कॉल्ड एज गूगल सर्च कंसोल, वहां पर जाकर हमको उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है. जब हम वहां उसको रजिस्टर करवाते हैं तो क्योंकि जानने बारे में, तो उनकी तरफ से वो हम
वो हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करता है या उसके कांटेक्ट में आता है, एंड देन ईच एंड एवरी लाइन साइट, चाहे वो पहले होम पेज पे हो, चाहे वो होम पेज के लास्ट बॉटम, या मेरी अगर वेबसाइट में 10 पेज है, 15 पेज है, तो वो सारे डिफरेंट पेजेस पे जाके एक वर्ड को पढ़ेगा, एक एक चीज को समझेगा, और उसके बेसिस पे वो बहुत बड़ी एक क्रिएट जो पहले से की हुई है, जिसको कि हम डेटाबेस बोलते हैं, वहां जाके इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देगा। तो मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ आई, गूगल क्रॉलर के पास में आई, से गूगल का क्रॉलर या उसका प्रोग्राम आया, वहां से उसने इंफॉर्मेशन उठाई, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसने डेटाबेस पे डाली, वो डेटाबेस से वो परमानेंट वहां पर स्टोर रहेगी। ऐसा नहीं है कि मेरी अकेले की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन वहां है, वहां ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके पास है, उसके सर्वर्स पे स्टोर है। तो वहां से सेकंड स्टेज शुरू होती है जो बोलते हैं सॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग। सो से फॉर एग्जांपल, अगर मेरी वेबसाइट इज डीलिंग विद एंटीबायोटिक्स, suppose license and my website is dealing with antibiotics, my website is dealing with say anti-medicines, my website is dealing with antidepressant, तो तीन अगर मेरी कैटेगरी की प्रोडक्ट है तो वो सारी अलग अलग जगह पर जाके स्टोर कर देगा। हो सकता है वो एक कैटलॉग जो बनाया हो वो जो है, या एक एंटीबायोटिक के लिए हो, दूसरा सेक्शन जो है एंटी डिप्रेसेंट के लिए हो, तीसरा सेक्शन जो है एंटीवायरल ड्रग्स के लिए हो, और उसकी सब सेक्शन है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाके लोड हो गई, एक पर्टिकुलर जगह पर या डेटाबेस, जहां मान सकते हो कि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, जहां जाके ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन लोड हो गई। तो ये मेरी ऑनलाइन लाइब्रेरी है। तो क्रॉलर क्या था, एक आप प्रोग्राम समझिए आपने कि प्रोग्राम ने किसको दे दी, इस ऑनलाइन लाइब्रेरी को दे दी। अब यहाँ सारी इंफॉर्मेशन अबाउट माय वेबसाइट इज स्टोर्ड। अब यहाँ मैं अपनी वेबसाइट रखा हुआ हूँ, आप में से एक कोई बंदा गूगल के सर्च पेज पे गया, उसने क्वेरी डाली सपोज एंटीबायोटिक, यहाँ पर जैसे ही ये सर्च क्वेरी डाली गई, गूगल इमीडिएटली कहाँ कांटेक्ट करेगा, इस कांटेक्ट करेगा, और इस डेटाबेस में जहां एंटीबायोटिक का सेक्शन है वहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा, यूजर को जिसने कि यहाँ क्वेरी डाली है उसको अपने पेज पर ये सारी करेगा। दिस पर्टिकुलर पेज इज कॉल्ड एज सर्च, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। मीन क्रॉलर ने आके इंफॉर्मेशन ले ली, क्रॉलर ने वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, आप इंडेक्सिंग कर दी उसकी, जैसे ही यूजर ने वो एक सर्च क्वेरी सबमिट करी, वहां से वो इंफॉर्मेशन निकाली गई, एंड देन इट हैज बीन सेंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ द यूजर। अब एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि गूगल काम किसके लिए करता है। गूगल आपकी वेबसाइट के बारे में चिंतित है, आर दे रियली थिंकिंग अबाउट यू, और आर दे रियली बॉदर्ड अबाउट द यूजर? क्या बोलते हैं आप लोग? व्हाट इज योर ओपिनियन? मींस गूगल एक्चुअली इज बॉदर्ड अबाउट योर वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज गूगल रैंकिंग जो होता है वो उस हिसाब से देता है। तो आर दे सो इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर वेबसाइट? वो आप में इंटरेस्टेड है कि यूजर में इंटरेस्टेड है? यूजर में। यूजर में इंटरेस्टेड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहब आप। वो किस में इंटरेस्टेड है? वो यूजर में इंटरेस्टेड है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आप तो सर्विस दे रहे हो, तो वहां क्योंकि गूगल का बिजनेस किससे चलता है? यूजर की सर्च क्वेरी से चलता है, यूजर के एक्सपीरियंस से चलता है। अगर यूजर जो सबमिट कर रहा है क्वेरी, उसका वो सही आंसर उसको नहीं मिलेगा तो वो बिंग पे चला जाएगा। वो दूसरी बात, चलो क्योंकि गूगल बहुत बड़ा नेम है हिंदुस्तान या नेपाल या बांग्लादेश या पाकिस्तान हमारे देशों में, तो हम हो सकता है 4 बार 5 बार सर्च करें उसी पर्टिकुलर क्वेरी को, लेकिन हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर या रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करूँ। तो हो सकता है मैं याहू का यूज करूँ, मैं बिंग का यूज करूँ, या मैं नेवर का यूज करूँ, या मैं यांडेक्स पे चला जाऊं, या मैं बायडू के पास चला जाऊं। बायडू क्योंकि वहाँ लैंग्वेज की बैरियर है एक तरह से, मैंडरिन में पूरा, तो हो सकता है मैं ना जाऊं, बट मैं आई विल गो टू डक, आई विल गो टू नेवर, आई विल गो टू यांडेक्स। सो देयर सर्च अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बिजनेस किसके लिए? गूगल के लिए। और गूगल इसमें इंटरेस्टेड है कि कैसे कस्टमर का एक्सपीरियंस या यूजर का एक्सपीरियंस बहुत शानदार हो। जब वो वेबसाइट पे आया या जब सर्च उसने क्वेरी डाली, जैसे ही उसने सर्च क्वेरी डाली, आफ्टर दैट ओनली ही शुड गेट द रिजल्ट, और जैसे ही वो
जो वेरियस उसके सामने लिंक्स ओपन हो रहे हैं या सामने आ रहे हैं, उस पर क्लिक करता है, उसकी क्वेरी रिजॉल्व होनी चाहिए। उसकी प्रॉब्लम तो ये हो सकता है वो परचेज करना चाहता हो प्रोडक्ट को, या वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहता हो, या उस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में ये जानना चाहता है कि उसको प्रमोट किया जा सकता है, या उसके बारे में और अवेयरनेस जानना चाहता हो वो पर्टिकुलर आदमी। तो देन कीवर्ड कैन बी नेविगेशनल, कीवर्ड कैन बी और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। तो वो कस्टमर क्या माइंडसेट रखता है ये समझना गूगल के लिए जरूरी है, और आप उसको केवल वो पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड करा रहे हो थ्रू योर वेबसाइट, कि जहां की उसको उसकी क्वेरी का रेजोल्यूशन मिल जाए, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाए। तो गूगल आप में इंटरेस्टेड नहीं है बॉस, गूगल मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, गूगल अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड है। गूगल का बिजनेस डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, जो यूजर है उसकी सर्च क्वेरी के ऊपर। तो इसके लिए सारी की सारी जो अल्गोरिथम्स हैं उसमें गूगल ने बहुत सारे अपडेट्स लेकर आया वो, और जिनको हम गूगल अपडेट मानते हैं, तो गूगल पेंडा, गूगल पेंगुइन, गूगल मेडिक, सो दैट दे हैव गॉट, आई कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज अपडेट्स हियर राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर आप सब कुछ चीजें देखोगे तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि आप जो है गूगल के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंच जाओ, और अपने आपका कस्टमर आप तक पहुंच पाए, और साथ में गूगल को भी फायदा हो। तो मतलब आप ये देखेंगे कि सर्च इंजन ओवरऑल यूटिलाइजेशन या ऑनलाइन मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग हम जब यूज करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल सिचुएशन फॉर एवरीवन। इट इज विन-विन सिचुएशन फॉर गूगल, इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर कस्टमर, इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्टीमेटली करना क्या है, हमको बेसिकली सारे कंपोनेंट्स मिलाकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे कि हम अपने कस्टमर तक पहुंच सके या अपने यूजर तक पहुंच सके जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले चीज जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन क्या है, मैंने आपको सर्च इंजन के बारे में बता दिया कि एक ऑनलाइन टूल है जो कि क्रॉलिंग करेगा, आपकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकालेगा, अपना डेटाबेस पे स्टोर कर लेगा, और उसके बाद में जैसे ही कस्टमर की और यूजर की सर्च क्वेरी आएगी उसको मैच करेगा। अगर वो उससे मैच होती है तो उसके सामने रिजल्ट दिखा देगा। अब डिपेंड करता है कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कितनी देर रहा, राइट, दैट इज कॉल्ड एज ड्वेलिंग टाइम। आप कस्टमर आपकी वेबसाइट या यूजर ने आपकी वेबसाइट पे आया, सपोज मैंने क्वेरी डाली थी माउथ वॉश, जैसे ही मैं वेबसाइट पे गया मैंने माउथ वॉश इसलिए डाला था कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ सपोज, और मैं माउथ वॉश के बारे में जानना चाहता हूँ, माउथ वॉश है क्या। मेरे को पहला यहाँ पर आई डोंट वांट टू गो फॉर एड, तो यहाँ मैं पहला Amazon.in पे चला गया। मैंने सोचा कि वहाँ Amazon कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, Amazon ने मुझे उसके कुछ पिक्चर्स दिखा दिया, प्राइस बता दी, बट दे आर नॉट गिविंग मी द डिटेल, व्हाई शुड आई यूज माउथ वॉश। मैं तो माउथ वॉश के बारे में जानने में इंटरेस्टेड था। तो गूगल सर्च पेज पे अगर आप नीचे देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को नीचे डालते हुए, तो आपको पूरा डिटेल माउथ वॉश के बारे में भी एक वेबसाइट या दो वेबसाइट आपको बताएंगे। तो वहां उनकी रैंकिंग क्यों आ रही है, क्यों मेरी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं आ सकती वहां पर। अगर मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊं जिसमें कि मैं माउथ वॉश से रिलेटेड या दी ओरल हाइजीन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट डाल दूं, तो क्या एकदम मेरी वेबसाइट वहां पहुंच जाएगी फर्स्ट पेज पे? क्योंकि और कोई वेबसाइट, ज्यादा वेबसाइट तो दिख नहीं मुझे वहां पर जो कि जो पर्टिकुलरली माउथ वॉश के बारे में बहुत सारे डिटेल दे रही हो। ऐसा नहीं हुआ कि इमीडिएटली ऐसा हो जाएगा। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या? बेसिकली इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज द प्रोसेस एंड द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक। जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं गूगल के थ्रू, कितने लोग आ सकते हैं, क्या उनका नंबर रहेगा, और क्या क्वालिटी का ट्रैफिक रहेगा। जैसे मैंने यहाँ बोला कि मैं अगर डायरेक्टली यहाँ माउथ वॉश डाला और मैं अमेजोन की वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, अमेजोन की वेबसाइट मुझे कुछ दिखाती है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो मैं उसी समय वेबसाइट बंद कर दूंगा, मैं वापस आके चेक करूंगा। हो सकता है मैं कीवर्ड डालूं कि माउथ वॉश डिटेल, और और मैं डालूं उसमें कि कंपोनेंट ऑफ द माउथ वॉश, तो देन मेरी कीवर्ड चेंज हो जाएगा और मैं उसी समय उस वेबसाइट से वापस आ गया। तो दैट इज कॉल्ड एज बाउंस रेट। उस केस में अमेजोन का बाउंस रेट बहुत हाई हो जाएगा, और गूगल जो है वो उस समय अमेजोन की रेटिंग कम कर देगा। अमेजोन की रेटिंग यहाँ इसलिए ज्यादा रहेगी क्योंकि लैक्स ऑफ द यूजर्स आर चेकिंग इट एवरी डे, तो एक दो बंदे के करने से या वापस आने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दैट्स व्हाई लाइक अमेजोन विल रिमेन देयर ऑन दी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। बट अगर ये नॉर्मल वेबसाइट होती तो उस केस में क्या होता, वेबसाइट की रैंकिंग कम हो गई होती। तो मुझे करना क्या है, फ्रॉम माय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आई वांट कि मेरे पास में ऐसा यूजर आए जो मेरी वेबसाइट के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, मेरे वेबसाइट के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो। ऐसा ना हो जो मेरी
वेबसाइट खोले और मेरी वेबसाइट से चला जाए उसी समय, उसको ही विल फील फ्रस्ट्रेटेड कि क्या है इस पर, तो दिखाया ही नहीं जा रहा कुछ भी। तो क्वांटिटी ऑफ द ट्रैफिक, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए मेरी वेबसाइट पे, प्लस क्वालिटी ऑफ द ट्रैफिक आए। तो यही सारा जो प्रैक्टिसेस हम यूज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये दो तरह से किया जा सकता है, या तो ये बेसिकली आप ऑफ साइट भी कर सकते हो, आई टॉक अबाउट इट, ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो आप, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक चीज और मैं आपको यहाँ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि ये सारा जो सर्च है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट हमको क्या बताते हैं कि हमने कुछ पैसा नहीं दिया अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए गूगल को। गूगल ने मेरी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, उसके रेलेवेंस के बेसिस पे मेरी वेबसाइट को रैंक किया सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, और उस कस्टमर ने उसको क्लिक किया, तो ये कहलाता है ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक सर्च है। तो बेसिकली एसईओ इज टू इंप्रूव द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक यूटिलाइजिंग द ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग हियर टू गूगल। दूसरा तरीका क्या है, मैं अपनी वेबसाइट को वापस से बढ़ा सकता हूँ, दैट इज दी इनऑर्गेनिक सर्च, और जिसको मैं पेड सर्च भी बोलता हूँ, जिसमें कि एड, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अगर मैं सपोज करूँ मैं एसईओ डालता है, यहाँ पर मैं एसईओ के बारे में जानना चाहता हूँ, यहाँ एसईओ करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, और एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानकारी मुझे विकिपीडिया से भी मिल सकती है, या फिर मुझे सर्च इंजन लैंड के थ्रू, दिस इज अनदर वेबसाइट जहां से मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब ये पुराना फॉर्मेट है, तो जहां थोड़ा सा ऐड करके दिखा रहा है, अदरवाइज ये इस तरह से दिखाएगा। जहां ये ऐड आपको दिखा रहा है, मींस ये सारे प्रोडक्ट जो हैं गूगल पे प्रमोट तो किए जा रहे हैं, गूगल दिखा रहा है कस्टमर को, बट क्यों दिखा रहा है? बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ द पेड सर्च। तो गूगल को आपने पे किया है, सो दिस इज गूगल एड। तो नाउ आप अपना करियर गूगल एड्स में बना सकते हैं। इतना आसान नहीं है कि आपका प्रोडक्ट वहां दिखने लगेगा इमीडिएटली, आपने पैसा दिया और आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा, उसके लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहे हैं, मतलब ये पोर्शन की बात मैं इसमें कर रहा हूँ, यहाँ एडवर्टाइजमेंट, मतलब मैं पे नहीं कर रहा हूँ एनीथिंग टू गूगल और एनी सर्च इंजन, बट मेरी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे आ जाए गूगल सर्च पेज के, माई टास्क इज हाफ डन। मेरा कस्टमर आएगा, क्वालिटी ऑफ कस्टमर आएगा, बट उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो करूँ क्या मैं? उसके लिए करना पड़ेगा आपको ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन मीन्स आप जब भी अपने वेब पेज को बनाते हैं, तो उसकी, जैसे अगर मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, आप एग्जामिनर हैं, तो सपोज एक क्वेश्चन आता है मुझे एग्जाम में, जिसमें मुझे बोलते हैं कि आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताइए, या आप चाइना इंडिया के रिलेशंस के बारे में बताइए, या यूएस इंडिया के रिलेशंस के बारे में बताइए। तो अगर सपोज ये क्वेश्चन आता है, तो मेरे पास में एक हेडर होगा, मतलब एक इंट्रोडक्शन का हेड बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मैं हेड, देन आई स्टार्ट राइटिंग माई आंसर, मैं उसमें कुछ चीजें लिखूंगा। उसके बाद में मैं फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहता हूं, तो मैं हेडर 1 लिखूंगा। सपोज मैं कह रहा हूं कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर कंटिन्यूअसली ऑन डिक्लाइन, तो मैंने वहां पर से हेडर 1 बना दिया, मतलब एक बड़े हेडर के अंदर अब मैंने दूसरा हेडर बना दिया। अब इसके अंदर भी मैं सब पॉइंट देना चाहता हूँ, सपोज करिए 1 2 3 सब पॉइंट, जिसके अंदर फर्दर सब पॉइंट है। तो इस तरह से मुझे हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? माय ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन में। मतलब मैं अपना कंटेंट कस्टमर या यूजर के सामने कैसे पेश कर रहा हूँ, कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, दैट इज दी पार्ट ऑफ योर फर्स्ट थिंग। मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैं इकोनॉमी के, मतलब मेरी वेबसाइट बता रही है कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, और वहां उसको कंटेंट जो मिल रहा है वो यूएस चाइना रिलेशनशिप का मिल रहा है कि ट्रंप ने ऐसा किया था, या बाइडेन जो है वो ऐसा करेंगे, या रशिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, तो देन कस्टमर विल फील और द यूजर विल फील ये क्या है। तो उसलिए मेरी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में कस्टमर ने क्वेरी डाली। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? मेरी वेबसाइट की हेडलाइंस, उसका पूरा पेज स्ट्रक्चर, उसका कोडिंग पार्ट, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेरी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन में आएंगी। अब मेरा उसके लिए मुझे टाइटल बनाना है, टाइटल टैग बोलते हैं, मेटा टैग। अगर किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको हर एक वेबसाइट के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, यहाँ पर जैसे इसको दिख रहा है, तो ये मेटा टैग्स हैं। साथ में अगर आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें किसने करनी है? ये सारी चीजें बेसिकली द पर्सन हु इज ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट। अभी मैं आगे जाऊं उससे पहले मैं आपको ये बोलूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर हम देखें तो एसईओ, एक तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस हो गया, लेकिन जो आदमी पूरी वेबसाइट को इस गूगल पेज की रैंकिंग पे लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है,
वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। तो कंपनी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, सर्च इंजन, ये तीन जो है एंटिटीज मिलके काम करते हैं, तब जाके आपके सामने वो रिजल्ट आता है जो आपको दिख रहा है। कंपनी का डेटा, कंपनी का प्रोडक्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर उसके ऊपर काम करेगा, सर्च इंजन जो होगा वो आपको वो सारे रिजल्ट दिखाएगा। जो तीनों मिलकर ये काम करेंगे तब जाकर आपको ये सारी चीजें दिखती हैं। तो आपको जब ये चीजें दिखानी है मुझको, तो अकेला मैं तो हूं नहीं, मेरे साथ में मेरे कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, तो वो मैं कैसे करूंगा? थ्रू ऑन साइट सर्च। तो आई विल यूटिलाइज मल्टीपल थिंग्स। अगर इफ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाओ, अगर आप ब्राउज करें एक सेकंड के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट, मैं आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्लाइड, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट दिखाता हूँ। आप खोलना चाहें तो आप अपने ब्राउजर से खोलिए टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट। वेबसाइट आप जो है आज तक की खोल लीजिए। Yes, sir. It's already open. Yeah, website is open. That's wonderful, sir. So now I am going to the website of the Times of India. I'll just showcase this website to you. I'll share my web page here. One minute. I'll just show this page. Is the website opened in front of you? Yes, sir. Okay. Is the website opened in front of you for the Times of India? अगर आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, अब ये जो है यहाँ पूरा जो है इसने अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो देन दे हैव ऑप्टिमाइज्ड देयर साइट। हालांकि बहुत सारे यूजर्स हैं, डे टू डे दे आर गोइंग, बट अकेला टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है मार्केट करने के लिए न्यूज को, इतने सारे और अदर कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं। अब मैं अगर उसकी वेबसाइट पे जाता हूँ और अगर मुझे वहां पर अगर न्यूज चाहिए, वो न्यूज मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा? किसी कॉम्पिटिटर पे चला जाऊंगा। तो अब मैं अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करूं? तो यहाँ पर सपोज एक तो ये सारा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इस पे क्या कंटेंट डालना है, प्लस एक चीज आपको दिखेगी साइट मैप। तो साइट मैप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये HTML साइट मैप है, मतलब ये आपको सारा कुछ बता देगा कि कहाँ मेरा कंटेंट कहाँ रखा हुआ है। टीवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे वीडियोस चाहिए, मुझे कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे सिटी वाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे मुंबई के बारे में जानना है, मुझे इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे वर्ल्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो साइट मैप जो है वो भी एक तरह से आप डेवलप करोगे जब आप ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन करते हो। अब ये साइट मैप भी दो तरह का होता है। एक तो जो यूजर देख रहा होता है उसको हम बोलते हैं HTML साइट मैप। एक जो क्रॉलर आएगा, क्रॉलर आपकी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज नहीं समझता। वो क्रॉलर जो है या गूगल का जो एल्गोरिथम है वो क्या समझता है? वो समझता है प्रोग्राम, वो समझता है मशीन लैंग्वेज। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है या कोडिंग है वो उसको समझता है। तो HTML में जब आप पूरी वेबसाइट बनाते हो या आपने वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाई, तो जो रूट होता है उसमें आप XML साइट मैप डालते हो कि क्रॉलर जो है कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। आप हर चीज नहीं दिखाना चाहते अपनी वेबसाइट पे क्रॉलर को। क्रॉलर इतने सारे पेजेस हैं नाउ, सो मेनी पेजेस आर देयर, हर पेज पे आप देखोगे एक अलग तरह की न्यूज है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन या न्यूज जो है वो क्रॉलर को पता है, उसने देखा कि इस पर्टिकुलर सिटी लाइक आगरा है बीन शोन देयर, तो उस समय क्या हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसको पता है? क्रॉलर को पता है। जब क्रॉलर को पता है तो ये मुझे दिख रही है एज अ यूजर, आपको दिख रही है एज अ यूजर, अदरवाइज ये हमको नहीं दिखती। तो क्रॉलर कौन सी वेब पेज पे कौन सी पर्टिकुलर प्लेस पे जाए, वो सारी चीजें कुछ वो कैसे पता चलती है? XML साइट मैप के थ्रू पता चलती है। अब ये XML साइट मैप बनाएगा कौन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर बनाएगा। कहाँ बनाएगा? विद दी कोडिंग, जो आपकी वेबसाइट पे कोडिंग है वहां पर बनाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन देगा थ्रू robot.txt फाइल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं इसमें राइट साइड में जाऊं तो यहाँ पर इफ आई गो टू
इफ आई गो टू दिस व्यू सोर्स पेज, ये मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि ये कहाँ ये मैंने कोडिंग नहीं करी है, ये कोडिंग पहले से हुई है इस पर्टिकुलर वेब पेज के लिए, लेकिन ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन लिखना कोई आसान काम नहीं है, इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, लेकिन हमको ये सारे काम नहीं करना है। एज अ डिजिटल मार्केटर आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, बट आई नीड टू हैव द इंफॉर्मेशन कि मेरा कोड जो लिखा जा रहा है वो सही है कि नहीं है, जो मेरा कंटेंट डेवलप किया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। और ये सारी चीजें मुझे किसमें हेल्प करेंगी, मेरी वेबसाइट को गूगल की वेब पेज पर रैंकिंग जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसको अप ले जाने में हेल्प करेंगी। तो चाहे वो साइट मैप हो, चाहे वो robot.txt फाइल हो, चाहे वो मेरी वेबसाइट पे क्या पहले दिखाया जाए। सपोज से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं यहाँ जैसे एवरेज पॉल्यूशन इन अदर सिटीज दिखाया, अगर मैं पहले कहता कि एवरेज पॉल्यूशन इन अदर सिटी और बाद में मैं दिखाता यहाँ आगरा का पॉल्यूशन रेट, से आई वांट टू टॉक एज अ यूजर, आई वांट टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट आगरा पॉल्यूशन लेवल, और टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मैं गया और वहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट बता रही होती एवरेज पॉल्यूशन इन द सिटीज लाइक अगरतला और अहमदाबाद, आगरा, सो इट इज गिविंग मी अ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन ऑफ दी आगरा एज अ सिटी। सो आई फील ये क्या है, ये तो पहले बाकी सारी सिटीज की बात कर रहा है, बाद में आगरा की बात कर रहा है, और बाद में मैं आगरा की इंफॉर्मेशन देता। मतलब मुझे अपनी वेबसाइट पे कंटेंट कैसे रखना है, क्या मेरा हेडिंग होगा, हेडिंग का सब हेडिंग क्या होगा, सब हेडिंग के सब हेडिंग क्या होंगे, ये सारी चीजें जो है वो मेरे ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन में आती है। मतलब मेरा टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर डाला था, अगर मैं सपोज सिंपली यहाँ ये बोलता ना, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ना डायरेक्टली जाकर मैं अगर ये बोला होता कि सपोज आई एम पुटिंग हियर टुडेज न्यूज, अब मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में बहुत सारी चीजें आ गई मेरे सामने यहाँ पर एड भी है, ये पेड एडवर्टाइजिंग है, ये SEM सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है। अब मेरे सामने यहाँ स्निपेट्स भी है, मेरे सामने यहाँ पर जो है NDTV भी है, मेरे पास में टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, मेरे पास में टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस भी है। अब मैं किस पे जाके चेक करता हूँ, मैं सोचता हूँ लाइव मिंट पे, मुझे बिकॉज आई हैव फेथ एज अ यूजर, आई हैव फाउंड website of live mint which is from HT, so it is giving a lot of the authentic information, so I'll click it। तो अब उसकी वेबसाइट पे वो सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए कि मैं फील करूं कि हाँ ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट डेवलप करना प्लस उसकी सारी चीजें, उसको स्ट्रक्चर करना प्रॉपरली, उसको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपरली, ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम है आपका ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन का। आई होप मैंने कुछ आपको हेल्प किया होगा ये समझने की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन साइट क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? यस सर, क्लियर कर पाया मैं। दूसरी चीज होती है ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है सपोज करिए, मैं जान सकता हूँ सर आप बैठे अभी कौन सी लोकेशन पे हैं? काठमांडू, ग्रेट। तो अगर मैं सपोज करिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपके आसपास कौन से रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर खाना खाया जा सकता है, तो अब आपके पास में दो ऑप्शन हैं। एक आपके पास में ऑप्शन है कुंवर साहब, और दूसरे आपके सामने ऑप्शन है श्रेष्ठ जी। तो श्रेष्ठ जी जो है वो शेफ हैं बाय प्रोफेशन, और कुंवर जी जो है वो जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो आप किससे इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, किससे आप जानकारी चाहेंगे? आप जानकारी, जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो आपको क्या लगता है किससे सही मिलेगी? आप ये सोचें कि रेस्टोरेंट आपके आसपास कौन सा अच्छा रहेगा, तो वो जानकारी आपको श्रेष्ठ जी दे पाएंगे या आपको कुंवर जी? किसकी जानकारी पे आप यकीन करेंगे ज्यादा? हेलो? यस सर। Yeah, your question was quite confusing, sir. That's why. No, I'm simply saying, say for example, you are a person who is wanting to go and dine out in any restaurant nearby in Kathmandu, but suppose you are new or you don't know the names of the restaurant. You want to go and dine at the best of the restaurants. So in that case, like now you have got two options. One is Mr. Shrest, KB Shrest, and then another option is Mausam Kumar Saab. And then in that case, Mr. Kumar is having the professional background of a sports person, and Mr. Shrest is having the background of cuisine, or he's basically a chef. तो किससे आप पूछेंगे? Definitely with chef, sir. आप श्रेष्ठ जी से पूछेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनकी एक्सपर्टीज है उसमें, आपको पता है कि वो उस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। मतलब आप जो इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास में वो कितनी रेलेवेंट है वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप जो
गैदर करते हैं या आपकी वेबसाइट को मिलती है या आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है दूसरी वेबसाइट से, वो सारी चीजें हम जो कहते हैं वो कहलाती हैं ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन में आप जो है बैकलिंक्स लेते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आप से हर एक वेबसाइट की अपनी एक अथॉरिटी होती है। अगर मैं कहूं कि मैं न्यूज के बारे में जानना चाहता हूं तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चला जाऊंगा, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो ऑथेंटिक मिलेगी। अगर वहां उसकी वेबसाइट से मेरी वेबसाइट, अगर मैंने छोटी सी एक वेबसाइट बनाई हुई है, सपोज मैं अपने स्मार्टफोन्स बेचता हूँ, उसके चार्जर्स बेचता हूँ, मेरी अपनी वेबसाइट है, और दूसरी वेबसाइट जो है बड़ी वेबसाइट जो है वो सपोज करो आज तक की है या टाइम्स ऑफ इंडिया की है। अब उस वेबसाइट ने एक लिंक दिया एक अपने कस्टमर्स को या अपने यूजर्स को जो कि मेरी वेबसाइट के बारे में बता रहा है, मतलब एक लिंक जो मेरी वेबसाइट का है। तो आप देखो कि मेरी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाएगी। क्यों रैंकिंग बढ़ जाएगी? क्योंकि वहां से वो वेबसाइट की अथॉरिटी, वो वेबसाइट जो है वो वेल नोन वेबसाइट है, वो रेलेवेंट वेबसाइट है। तो वहां से जूस लिंक कहते हैं इसको हम इंटरनेट की भाषा में, वो जूस लिंक विल बी पास्ड ऑन टू माय वेबसाइट एंड माय वेबसाइट लिंक विल बी द रैंकिंग ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज विल इंक्रीज। तो उससे क्या होगा, मेरे जो मेरा यूजर, मेरी रैंकिंग बढ़ गई सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो टेंटेटिवली चांसेस आर हियर कि मेरे पास में ज्यादा कस्टमर आ जाए, मेरे पास में मेरे जो कस्टमर ज्यादा आएंगे, मेरे पास रेलेवेंट ट्रैफिक आएगा, मेरी कंपनी की ग्रोथ होगी, परचेज ज्यादा होगा, सेल ज्यादा कर पाऊंगा, और दैट वे लाइक माय बिजनेस विल बी ग्रोइंग। तो मैं ये सारी चीजें जो अपार्ट फ्रॉम डूइंग द टेक्निकल एसईओ ऑन माय पेज वेयर आई एम 100% हैविंग ऑल द कंट्रोल, अगर मैं कुछ चीजें ऐसी कर रहा हूं जिससे कि दूसरे लोग मेरी वेबसाइट में अपना फेथ रिपोज कर रहे हैं और उस कारण से वो अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक दे रहे हैं कि यहां से आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगा, ऑथेंटिक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मेरी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। इसको हम कहते हैं ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी तरीके से ये किया जा सकता है। एक तरीका है कि आप अपने ब्लॉग्स डालें खुद के या दूसरों के ब्लॉग्स जो हैं उनके थ्रू, बिकॉज सिंपल से दुनिया में एक चीज है, आप एक हाथ से लेते हो दूसरे हाथ से देते हो, या एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ से लेते हो। आपको दूसरा बंदा तभी सपोर्ट करेगा जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट रखते हो, या आपको तभी सपोर्ट करेगा जब उसको कुछ उसमें फायदा होगा। तो दोनों हाथ से ताली बजती है साहब। तो इसलिए आपको ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन जब करेंगे तो उसमें बैकलिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो बैकलिंक आपको कहां से मिलेंगे? दूसरों के ब्लॉग से मिलेंगे, दूसरों की वेबसाइट से मिलेंगे, एंड उसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा उनको। आप कैसे ये सारा कुछ काम करेंगे, सोशल नेटवर्क से अपने आप को प्रमोट कैसे करेंगे, सोशल नेटवर्क, हालांकि गूगल का जो एल्गोरिथम्स है, रिसेंट अपडेट जो है वो ये कहते हैं कि भाई हम सोशल नेटवर्क से जो आपको लिंक मिलता है, फेसबुक पे आपने लिंक डाला या ट्विटर पे लिंक डाला, वहां से आपके पास में जो ट्रैफिक आया आपकी वेबसाइट पे, सपोज मेरी एक हैशटैग से इकोनॉमी ऑफ इंडिया मैंने एक डाला हुआ, जो मैंने कंटेंट मेरी वेबसाइट से कनेक्टेड है, और अधिकारी जी वहां जाके क्लिक करते हैं और उस बेसिस पे मेरी वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो उस केस में गूगल कहता है, गूगल का अपडेट ये कहता है कि साहब आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपकी रैंकिंग अप नहीं होगी, लेकिन अधिकारी जी ने मेरे वेबसाइट के बारे में जाना तो सही, ही नोज दैट आई एम गिविंग द रेलेवेंट कंटेंट। नेक्स्ट टाइम मैं गूगल के, मतलब अधिकारी जी डायरेक्ट जाएंगे गूगल के सर्च इंजन पे और वो मेरी वेबसाइट डाल देंगे, सपोज उन्होंने डाली इकोनॉमी ऑफ इंडिया .com, सपोज ये मेरी वेबसाइट का नाम है, तो उनको पता है कि इंफॉर्मेशन देगी, तो नेक्स्ट टाइम वो दैट विल हेल्प मी। तो चाहे वो सोशल नेटवर्क्स हो, चाहे वो ब्लॉग्स हो, कहीं से भी मुझे बैकलिंक्स मिल रहा है, तो इसमें डू फॉलो लिंक्स भी होते हैं, नो फॉलो लिंक्स भी होते हैं, और उस बेसिस पे मेरी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होती है। ये सारा काम मैं कैसे करूंगा, ये आता है ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन में। फिर वेब मार्केटिंग में कर सकता हूँ, ब्लॉग, जिसको हम वेब ब्लॉग बोलते हैं, मतलब मुझे अपना खुद का ब्लॉग बनाना है, उसमें मैं रेलेवेंट और दी राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उस सारी मार्केटिंग को, और उसके थ्रू मैं अपना मार्केट कर रहा हूँ प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज वेबलॉग मार्केटिंग और ब्लॉग मार्केटिंग। बैनर एड्स देखा है आपने, सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, जो भी नेट यूज कर रहा है उन सबको ये दिखता ही दिखता है। बैनर एड्स while you are browsing through any website, आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं आपको बैनर एड्स दिखेंगे। जो सारा का सारा जो है वो आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग का पार्ट है। बेसिकली इट इज पेड एडवर्टाइजिंग। तो कितना पे करना है, किसको पे करना है, मेरा एड जो है वो, मेरी प्रोफाइलिंग क्या रहेगी कस्टमर की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन और उसको प्रॉपरली यूज करना, ये सारा आता है पीपीसी में, पे पर क्लिक, और या मेरी सर्च इंजन मार्केटिंग में। तो बैनर एड्स मुझे करने आने चाहिए। सोशल नेटवर्क्स पे कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वेदर इट इज ऑन ट्विटर और टम्बलर, और हाउ विल आई बी गेटिंग दीज लाइक्स। यूट्यूब पे प्रमोट कर रहा हूँ तो कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूँ। अब आप केस देखिए, आपने मीशो नाम की वेबसाइट सुनी होगी जो कि सोशल कॉमर्स में है, मीशो। तो मीशो
अपने आप में बहुत छोटा सा ब्रांड था। पहले लोगों ने शुरू किया कि व्हाट्सएप पे या आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो या अपनी सोशल जो आपके लिंकेज हैं अपनी वेबसाइट पे, मे बी आपके फेसबुक पे, उनके साथ में अपने प्रोडक्ट को उनके साथ में शेयर करो, एंड दैट वे सोशल कॉमर्स इज गेनिंग ग्राउंड। बट सोशल कॉमर्स इज ऑल्सो गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम दी सोशल मार्केटिंग ओनली, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे या टम्बलर पे, या आप अपने आप के बारे, अपनी वेबसाइट के बारे में ब्रांड अवेयरनेस डालना चाह रहे हो, जो आप कोरा यूज कर रहे हो या आप Vimeo यूज कर रहे हो, तो एनीवेज लाइक यू आर यूटिलाइजिंग दीज ऑल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स हैं क्या? बेसिकली सोशल नेटवर्किंग, जिसमें कि सिमिलर इंटरेस्ट के लोग साथ में मिलते हैं, वो अपने फोटोज, अपने वीडियोस डालते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक अवेयरनेस फैलती है और उस अवेयरनेस के बेसिस पे पीपल विल से कि ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड खराब है, इस ब्रांड से परचेस करो, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बढ़िया है। तो दैट वे इट हेल्प्स यू इन इंप्रूविंग योर product awareness and market your product. So this whole marketing which is to be done utilizing the social media platform, that is what is social media marketing, right? Forum marketing means suppose मैं एक टेकी हूँ, टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, सपोज मैं ब्लॉकचेन के बारे में बहुत अच्छा जानता हूँ या और उस पर काम करना चाहता हूँ। अब मैं एक फोरम बना लूंगा और फोरम पे मैं ब्लॉकचेन के बारे में लोगों से बात करूंगा, लेकिन इस फोरम में कौन से लोग होंगे? जिसमें अधिकारी जी भी बहुत बड़े सपोज ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, जो मौसम जी हैं वो भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, उन्होंने कुछ एक ब्लॉकचेन क्रिएट किया भी हुआ है। तो अब उस बारे में सारे लोग हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक मार्केटर वहां अपना प्रोडक्ट लेकर जाता है, सपोज करिए कि हम लोग जो है इंटरेस्टेड हैं ब्लॉकचेन में, और सपोज करिए कि श्रेष्ठ जो है वो एक कंपनी में काम करते हैं जो कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनी है, जो कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है या फिर वन पार्टी टू पार्टी लॉजिस्टिक्स है, बट लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, बट ही इज रिलेटेड इन इंटरेस्टेड इन ब्लॉकचेन की ब्लॉकचेन जो है उनकी लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देगा, उसमें जो लैग टाइम होता है, लीड टाइम होता है, वो कैसे मिनिमाइज हो जाए। तो उस केस में क्या हुआ, कम्युनिटी जो है उसमें शामिल कौन है? श्रेष्ठ जी शामिल है। अब एक मार्केटर है जैसे IBM और मर्क, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी इस फोरम में, तो देन इट इज लाइक फेसबुक, सॉरी इट इज लाइक फोरम मार्केटिंग। मतलब एक कम्युनिटी में अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हो तो दैट इज फोरम मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग, आप सुबह शाम 1000 ईमेल्स आते हैं, तो उस ईमेल्स में आपके पास में प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। अब उस पूरी चीज को हम कैसे मार्केट करते हैं, कौन कंपनी किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द ईमेल, दैट इज द पार्ट ऑफ द ईमेल मार्केटिंग। देन अब ये सारी चीजों को जानने के लिए कि वास्तव में कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट देखा, नहीं देखा, मेरी वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट मेरे पेजेस के वो सारा एनालिटिक्स का वहां थ्रू मुझे मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे कि एनालिटिक्स भी यूज, तो ये सारे एनालिटिक्स जो है मुझे हेल्प करते हैं रियल टाइम मैंने क्या देखा, और उस बेसिस पे मैं अपने एड जब मैं दिखाऊंगा तो कहाँ कौन सी किस तरह की वेबसाइट पे दिखाऊंगा, मुझे हेल्प करेंगे। एक और तरह की मार्केटिंग उहाँको चाहिँ त्यो नेटवर्क प्रब्लम भयो जस्तो छ, एकछिन बसौँ है सबैजना। इज ब्याक अगेन। सर के हुआ था? नेटवर्क प्रब्लम भएको होला, ही इज ब्याक अगेन। Okay. Sorry, my network got disconnected here. Hello. Yes sir, please continue. Am I audible? Yeah, yes sir. अब एक और जो इम्पोर्टेंट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें कि आप जो है खुद अपना प्रोडक्ट नहीं रख, आप किसी और का प्रोडक्ट, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी तरह से लोगों से टच में हो, आप बहुत प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो, आप दूसरे का प्रोडक्ट जो है अपनी वेबसाइट पे मार्केट करोगे, इसको एफिलिएट मार्केटिंग, और उसके एवज में उसके रिटर्न में आपको एक कमीशन मिलता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास में भी इतना टाइम नहीं है, जिसके अदरवाइज इट्स अ बिग टॉपिक, इसके बारे में हम कर सकते हैं। अब इस मार्केटिंग को, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे यूज किया जाता है? हेलो, ऑडिबल? Yeah, yes sir, yes. So then
बेसिकली क्या है, आपका जो मर्चेंट है उसके साथ में आप जो है वहां पर से अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो उसके थ्रू, तो आप वहां पर रजिस्टर हो जाएंगे। आपका मर्चेंट जो है आपको एक कोड उसकी वेबसाइट पे जैसे ही आपके थ्रू कस्टमर पहुंचेगा, सपोज करो मेरे सपोज देयर इज वन प्रोडक्ट luxuryhairs.com, इसका कोई प्रोडक्ट जो है से हेयर ऑयल जो मैं अपनी वेबसाइट पे मार्केट कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, और अधिकारी जी उस वेबसाइट पर जाकर उस पर्टिकुलर मेरी वेबसाइट पे आते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं बिकॉज ही इंटरेस्टेड, ही इज फाइंडिंग दिस प्रोडक्ट इंटरेस्ट समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग, और वहां उसको प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो जैसे ही ये मेरी वेबसाइट पे luxuryhair.com पे पहुंचेंगे, luxuryhair.com पे, तो जो मर्चेंट है उसको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से इनकी वेबसाइट पे आए हैं, क्या ये गूगल के थ्रू आए हैं या ये प्रशांत गुप्ता की वेबसाइट के थ्रू आए हैं। तो देन ही विल बी एक्चुअली गिविंग मी, और वहां से ये परचेज कर लेते हैं। सपोज आप एक हेयर ऑयल परचेज कर लेते हैं luxuryhair.com पे से, तो उस केस में क्या होगा, जो सपोज 100 रुपीज का अगर वो है एंड 10% मे बी 20% जो भी मेरा मार्जिन या जो भी मेरा कमीशन होगा वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। मतलब आपको अपना प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है, किसी और का प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, बट यू शुड नो how to attract the customer on your website. More is the traffic on your website, you'll be able to attract more customer, more quality customer, more number of the customer, more sales will happen. It may be for the affiliate marketer, it may be giving you more benefits in terms of your own business, or it may be affiliate for the impactful, or it may be more beneficial for your affiliate marketer. But somehow you should know how to attract the customer on your web page. So this way affiliate marketing is to be utilized. फिर ऑनलाइन मार्केटिंग अगर मैं बात करूं तो उसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या जिसको हम बोलते हैं एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग या पीपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डिस्प्ले ऐड दिखाएंगे, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जब ऐड आपका वीडियो चालू होता है तो नीचे उसके अंदर ही एक ऐड आ जाता है जो कि हमारे या फिर उसमें एक चीज लिखी आती है 3 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड का ऐड है, तो दे आर स्किपेबल एड, मतलब आप उसको स्किप कर देते हैं। या आपके पास में एक ऐड ऐसा दिखाया जाता है उसके भी हो ही नहीं सकता, तो डिस्प्ले ऐड में मैं अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं तो डिस्प्ले ऐड के थ्रू दिखाऊं, कि स्किपेबल ऐड दिखाऊं कि नॉन स्किपेबल ऐड दिखाऊं, कि मेरे वेबसाइट पे मैं अपना किसी की वेबसाइट पे ऐड दिखाऊं, कहाँ मैं अपना ऐड दिखाऊं, कि अफिलिएट लिंक बनाऊं, ये सारा जो कुछ है वो आता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या सर्च इंजन मार्केटिंग में। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली अ फॉर्मेट ऑफ द मार्केटिंग and the advertising which actually utilizes the internet to deliver the promotional marketing messages to the product to the customer. Thereby customer will be going and searching the product either on your website or maybe clicking it there. So CTR, click through rate, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और CTR, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी वेब एनालिटिक्स से। तो अब आपको इतना शायद थोड़ा आइडिया होगा कि ये सारी चीजें अगर मैं कहूँ एक साथ, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे सर्च इंजन हो, चाहे बैनर हो, चाहे सोशल नेटवर्क हो, चाहे फोरम्स हो, चाहे ईमेल्स हो, चाहे एनालिटिक्स हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, वीडियो मार्केटिंग हो। तो ये सारी चीजें मिला के जो एक चीज हमारे सामने आती है वो कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग। तो आई होप मैंने थोड़ा सा आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज में थोड़ा बहुत कुछ एडिशन जरूर किया होगा। हालांकि यू पीपल आर लर्निंग पीपल, यू पीपल आर ऑलरेडी सो मेनी थिंग्स, मैंने उसमें कुछ ऐड अंश भर भी ऐड किया हो, तो आई थिंक माय 1.5 hour interaction with you is successful. So thank you so much. Right, I think like the time is about to be over. It's already over. So like in case if you have got any queries related to this, so you can ask. Yeah, thank you, Dr. Prashant. Yeah, it was very nice. So how many hours it will have this for this curriculum, sir? It will be 25 hours. 25 hours. Course, sorry, 1 minute. I will tell you, ये आप क्या curriculum पूरे कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? Yeah. Of digital marketing that we are. Yeah. 1 minute. मैं आपको ऐसे बताऊँ, मुझे मैं स्टार्ट करके I will stop sharing and directly आपको जैसे इससे जुड़ जाता हूँ। I think Kajal ma'am, can you throw some light on this? देखो, hello? Who is this? 1 minute. Give me 1 minute, please.
ये भी बुक रख दे। One minute. I'll try to show what all content we are going to cover. Yeah, no worries, sir. No worry. We are waiting. I'll just open the website. Is website visible to all of you? Yeah. तो ये हमारा सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा फॉर ग्रेजुएट ऑल द सिलेबस इज अवेलेबल यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ सिलेबस में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इसमें हम जो डिजिटल मार्केटिंग में कवर करेंगे वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी विल ट्राई टू कवर इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन Yeah. से लेकर डिस्क्रिप्शन टैग कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी एंकर टैग रोबोट टीएक्सटी फाइल ये सारी चीजें ऑफसाइट ऑप्टिमाइजेशन भी कवर किया जाएगा देन सोशल मीडिया मार्केटिंग गूगल एडवर्ड्स या गूगल जिसको हम आज की डेट में गूगल एड्स कहते हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल बी टॉकिंग अ बिट अबाउट द मोबाइल मार्केटिंग आल्सो हियर तो ये सारी कंपोनेंट जो है वो बहुत डेप्थ में कवर किए जाएंगे एंड it will be 2 month program and Yeah, it means 8 weeks. नंबर ऑफ आवर्स अभी मैंने एग्जैक्टली इनसे बात नहीं किया है कितना नंबर ऑफ आवर्स पर क्लास में रखेंगे अब काजोल मैम हेलो 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 काजोल मैम आर यू देयर She is there, but I think she is somewhere not in front of. Okay, fine. So that way, like, I will ask these people to send you some information if you are wanting to really know, like, how many number of hours it will be requiring to cover this whole thing. But I don't have the information on this part. No worry, sir. No worry. Yeah. Right. So I think like total मिलाकर इसमें हमको 8 weeks का प्रोग्राम होगा ही होगा. Yeah, here it is. 16 classes will be there. And for 16 classes full program. No, sorry, 1 minute. It means 16 class means 4 days in a week. It means it will be completed within a month. I need to check. Number of hours. It is going to be 2 months program. So weekend पर अगर जैसे रखते तो 2 days का program होगा. I think like it is not going to be there for 2 days in a week. Yeah, it's okay. It's okay, sir. Okay. I'm not about this information. Probably if these people will be giving you more information about it in time to come, like probably in a day or two, you'll be getting the information. So number of hours in our classes, I think we will go through some practicalities also, no, sir? Only some practical. मैं आपको एक चीज बोलूं, without practical digital marketing is dead. Yeah. अगर आपने इसमें खुद प्रैक्टिस नहीं किया या जो इंस्ट्रक्टर है ट्रेनर है उसने कुछ भी नहीं कराया जो कि प्रैक्टिकल हो तो वो जीरो है. अगर सब एक बहुत छोटी सी कहावत है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी डेड वेबसाइट को देखना चाहते हो तो कहाँ जाओगे? Where will you find a dead website? Go to the second page of the Google. गूगल हमको जब सर्च इंजन दिखाता है रिजल्ट फर्स्ट पेज से हम देखते हैं, सेकंड पेज से हम कितनी बार जाते हैं. तो मतलब अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज से दिखाई नहीं दी तो आपकी वेबसाइट डेड है. यू विल फाइंड द डेड बॉडी ऑफ अ वेबसाइट ऑन द सेकंड पेज एंड द थर्ड पेज. So forget about it. Dead body of your website will be there lying on the second page of this Google search engine result page. अब मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हूँ.
अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना नहीं आता, वो मैं कैसे सीखूंगा? वो मैं तब सीखूंगा तो मैं प्रैक्टिकली उसको करूंगा। तो Yeah. यहाँ ये बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं कि एक छोटा सा इसी पार्ट में एक सेशन जो होगा जिसमें कि हम बात करेंगे कि वेबसाइट जो है उसको अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ हम जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसमें हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी जिसमें कि वर्डप्रेस का आधा घंटे का सेशन दिया जाएगा, जिसमें इसी में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ में ही चलेगा वो, और जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्डप्रेस का आप वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट कैसे डेवलप कर लोगे, और जब आप उसको डेवलप कर लोगे तो उसमें क्या क्या चीज कर सकते हो, आपको बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा उसके ऊपर, एंड देन यू कैन हैव योर ओन वेबसाइट, उसको आप खुद ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, जब उसको प्रैक्टिस करोगे आप घर पे बैठ के, आपको उसमें होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, पैसा एक खर्च करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। आपके पास में वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में, टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी खुद की वेबसाइट रख सकते हो बिना एक पैसा, ना तो होस्टिंग में आपका पैसा जाएगा, ना ही आपकी डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए आपका पैसा जाएगा। Put together, you will have a website in your hand, and with your friends, you can connect it with the social network, and thereby you will see in real time how how this website is working. उसको आप अगर कनेक्ट करोगे गूगल सर्च कंसोल के सामने तो आप गूगल एनालिटिक्स देख सकते हो। तो मतलब आपको ये सारी चीजें, या आपने जब वेबसाइट बनाई तो उस समय आप कौन से कीवर्ड यूज करोगे, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है मुझे कीवर्ड ऐसे यूज करने हैं जो हाईली कॉम्पिटिटिव तो हो, लेकिन वो ऐसे ना हो कि जिसमें कि लॉट ऑफ द मतलब बहुत अट्रैक्ट तो कर सके कस्टमर को, लेकिन ऐसे कीवर्ड ना हो जिसमें कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। तो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड ऐसे चूज करने हैं जिसमें कि जो अट्रैक्ट करें कस्टमर को, और वो सारी चीजें मेरी वेबसाइट पे होनी चाहिए। लेकिन ये सब आपको करना पड़ेगा, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, केवल मैं आपको बता दूंगा एक स्लाइड के थ्रू, तो देन इट इज नॉट सफिशिएंट। So Yeah. here we'll discuss through our course these all aspects, and simultaneously you have to do it. तो वो सारा चीज मैं करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। Definitely. राइट, जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी यहाँ पर। अगर एक से वेबसाइट, अगर मैं कहूँ कि आपको उस वेबसाइट की किसी भी वेबसाइट के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए गूगल जब रैंक करता है तो एक रैंकिंग जब भी करी जाती है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, टू रैंक इन दी अपर रैंकिंग ऑफ दी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उसमें से एक फैक्टर जो इम्पोर्टेंट होता है वो है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आज की डेट में हर एक आदमी की वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। केवल डेस्कटॉप पे दिख रही है आपकी वेबसाइट, टैबलेट पे दिख रही है, लैपटॉप पे दिख रही है, लेकिन मोबाइल पे नहीं खुल रही, वो नहीं चलेगा। तो Yeah. उसके लिए आपके पास में क्या टेस्टिंग टूल है? आप कैसे देखोगे कि आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है? तो उसके लिए मैं आपको टूल बता रहा हूँ, जैसे गूगल सर्च कंसोल पे ही वो टूल मिल जाता है, मोबाइल टेस्टिंग टूल। जैसे मैं आपको एक सेकंड मैं आपको ये दिखाता भी हूँ। 1 मिनट, लाइट जलाना जरा, लाइट नहीं। I'm so sorry, like electric interruption at my end. No worries, sir. No worry. Please take your time. I'll just show you one. आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है, ये आपको मैं कैसे पता करूंगा? इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये बेसिकली गूगल का सर्च इंजन, गूगल का ही अपने आप में एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल पे यू कैन फाइंड आउट search.google.com टेस्ट मोबाइल फ्रेंडली। ये पूरा यूआरएल आप डालेंगे, या इसको हम सिंपली अगर आप अपने यूआरएल पे भी डालेंगे, ब्राउजर पे अगर आप सिंपली डालें गूगल मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट टेस्ट, तो वो आपके सामने ये पर्टिकुलर ऑप्शन खोल देगा, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। अब इस पे आप कोई भी वेबसाइट डालिए, सपोज मैं एक वेबसाइट डालता हूँ, यू टेल मी वन नेम ऑफ द वेबसाइट, कोई भी एक नाम बताएं। Okay. जो ज्यादा जानकारी में नहीं हो या आपके आसपास लोकल वेबसाइट हो वो बताओ आप मुझे, कैसे वो वास्तव में मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ दिख जाएगी। Risingstar.edu.np. सॉरी, Risingstar.edu.np. Risingstar.edu. Dot
अब हम ये देखते हैं कि वेबसाइट वास्तव में ये It's Rising Star, not Rising only. सॉरी Right. Rising Star. ओके सॉरी राइजिंग स्टार you can test any of the URL there. Yeah. Risingstar.edu.np, right? Yeah. Rising.edu. Yeah. This is okay. This is risingstar.edu.np. This is okay. Rising Star. Because of the power cut, I'm facing here some issues. Give me a minute. Risingstar.edu. NP. NP. Yeah. This is okay. Is it okay? Yeah. So now let us try to see वास्तव में मोबाइल फ्रेंड वेबसाइट है या नहीं. I'll just test it. It will analyze the data. Sometimes take time because it depends on the internet connectivity. Yeah. But it will tell you ये एक तरीका है जिस now this mobile this is very much friendly website. तो ये एक टूल है जो कि गूगल सर्च कंसोल पे अवेलेबल है, आप इसको चेक कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है, तो ये एनालिटिक्स में आप जानना चाहते हो तो देयर आर वेरियस टूल्स. लेकिन जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि गूगल सर्च कंसोल पे ही आप चेक कर सकते हो, गूगल वेब मास्टर का यूज कर सकते हो आप, नहीं तो अगर थोड़ा सा पेड कर सकते हैं तो उस केस में आप मॉज का यूज कर सकते हो. Ahrefs एक टूल है जिसका यूज किया जा सकता है. मतलब बहुत सारे टूल्स हैं जो हमको हमारी वेबसाइट को इम्प्रूव करने में, हमारी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं. बट ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब हम इनको प्रैक्टिकली कर रहे हैं. इसलिए इस पूरे कोर्स में ये सारी चीजें करी जाएंगी जिसमें हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि ये टूल कैसे यूज करना है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है. यूज करना भी सीख लिया बट उसका इंटरप्रिटेशन नहीं आता, देन इट इज नॉट ऑफ एनी यूज, राइट? सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी. Yeah. Definitely, sir. Thank you. If someone has some questions, please. अगर hello, anybody is having any other queries, or like in case if you are having any queries, so I am just welcoming your query in case if you have any query, or shall we call it a day? Yeah, I think people doesn't have questions, sir.